السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں کا ایک گروپ اتوار کی صبح تفریح کی غرض سے سری رام ساگر پروجیکٹ کے لکشمی کنال کے بیک واٹر علاقے پہنچا، جہاں نہاتے وقت پیش آئے افسوسناک واقعے میں 4 نوجوان پانی کے گہرے گڈھوں میں ڈوب کر لاپتہ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق تمام نوجوان پانی میں نہانے کے لیے اترے تھے کہ اچانک 4 افراد گہرے پانی میں چلے گئے اور ڈوب گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی غوطہ نے ریسکیو آپریشن شروع کیا، جس کے دوران 2 نوجوانوں کی نعشیں نکال لی گئی، جبکہ باقی ایک نوجوان کی تلاش تاحال جاری ہے۔ جہاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی شناخت نظام آباد کے آٹو نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے کلیم، نزہت اور عظیم کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ مہاراشٹر کے حمایت نگر سے تعلق رکھنے والے نوجوان ریحان کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیم میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرکل انسپکٹر جان ریڈی، موکل کے سب انسپکٹر کرن کمار اور مینڈورا کے تحصیلدار سہاسنی موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں لاپتہ نوجوانوں کی تلاش میں ہے مصروف۔ تلنگانہ میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پراپرٹی مالک پر 3 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ جسٹس بولم وجے سنگھ ریڈی نے الکاپور ٹاؤن شپ نیک نامپور کی رہائشی ارونا اگروال کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ عمارتوں کی تعمیر سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں مالی جرمانہ ادا کرنا ہوگا تاکہ عوامی انفراسٹرکچر اور سرکاری وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار کو اصل نقشے کے مطابق گراؤنڈ فلور اور 2 منزلیں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود 2 اضافی منزلیں اور ایک پینٹ ہاؤس تعمیر کر لیا۔ عدالت کے مطابق اس غیر قانونی تعمیر کے ذریعے تقریباً 8 سے 10,000 مربع فٹ اضافی جگہ بنائی گئی، جس کی مالیت 3 سے 4 کروڑ روپے کے درمیان بتائی گئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اضافی منزلیں مشترکہ خاندان کی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی تھی اور عدالت سے عمارت کو ریگولرائز کرنے کی درخواست پر غور کرنے کی استدعا کی گئی۔ صدر لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے آج صدر دفتر بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر حیدرآباد میں منعقدہ ہفتے وار نشست عوامی مسائل کا حل احکام شریعت کی روشنی میں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک ایسا کامل، معتدل اور آفاقی دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف عبادت ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی سیرت سے رہنمائی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اولیاء اکرام، صالحین اور شہداء کے بلند مقام کو بیان کیا ہے اور ان کی رفاقت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام، شہداء، صالحین اور اولیاء کاملین کی یاد تازہ کرنا، ان کی دینی، علمی اور روحانی خدمات کا تذکرہ کرنا، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کرنا امت مسلمہ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ یہی محبت و نسبت ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور انسان کو نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک چیتا سڑک کنارے مردہ حالت میں پایا گیا، جس کے بعد محکمہ جنگلات کے حکام نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح تقریباً 10:30 بجے ہیولی گھناپور منڈل کے گنگاپور راجیشور سوامی مندر کے قریب رامائن پیٹ میدک روڈ پر پیش آیا، جہاں چیتا خون میں لت پت مردہ حالت میں پایا گیا۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق گنگاپور کے اطراف جنگلاتی علاقے ہونے کی وجہ سے چیتا ممکنہ طور پر خوراک یا نقل و حرکت کے دوران سڑک پر آ گیا ہوگا، جہاں کسی نامعلوم گاڑی کے دھکا لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حکام نے چیتے کی لاش کو تحویل میں لے کر معائنہ کیا، جبکہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے مکمل تحقیقات جاری ہے۔ محکمہ جنگلات نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کی حتمی وجوہات سامنے آئیں گی۔ ضلع پریشد اردو میڈیم ہائی اسکول مٹپلی میں ایم ایل اے ڈاکٹر کے سنجو کمار نے دورہ کرتے ہوئے طلباء اور دہم جماعت کے طلباء سے گفتگو کی۔ اس دوران صدر مدرس ڈی پروین کمار اور طلباء سے اسکول کی تعلیمی حالت اور متعلقہ مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اسکول کی عدم تکمیلہ عمارت کی حکومت متعلقہ عہدیدار اور ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن سے نمائندگی کرتے ہوئے طلباء کے خاطر اسکول عمارت کو جلد تکمیل کیے جانے کا بھی تیقن دیا۔ مقامی ترقیاتی امور میں غیر معمولی تاخیر پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر تدریسی عملہ شیخ فیاض احمد خان، جگن موہن، گنیش، نفیس سلطانہ، سمیرہ، فاطمہ، پروین سلطانہ، نازیہ بیگم کے علاوہ صدر انجمن اشاعت اردو حافظ محمد عبدالعزیز، نمائندہ کونسل محمد جاوید احمد خان سونو اور دوسرے بھی موجود تھے۔
मिटपल्ली मुस्लिम पूरा यूथ कायद अब्दुल गनी रहमान जो मुकामी मजलिस पार्टी से वाबस्ता थे मुकामी तरक्याती उमूर के खातिर हल्का असेंबली इंचार्ज जोआडी नरसिंह राव के हाथों कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा मोहम्मद रफी और दूसरों ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहीराबाद सदर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अरशद अली ने अफराद खानदान के हमरा साबिक रियासती वजीर वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जय गीता रेड्डी से उनके मकान पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की और उनकी सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्ती हासिल की और कहा डॉक्टर जय गीता रेड्डी की जहीराबाद की तरक्की डॉक्टर जय गीता रेड्डी की मरहूने मिन्नत है। उनकी काविशों से ही जहीराबाद में सनती ज़राई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया था, जैसे जहीराबाद की आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की तरक्की की सिमत गामजन है। हनमकुंडा से सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में शरीक करवाने के लिए एम्बुलेंस के जरिए मरीज सुदर्शन रेड्डी को अस्पताल में मुंतकिल करते हुए गुज़िश्ता रोज साबिक एमएलए शकील आमिर की रिहाइशगाह बोधन में बीआईएस पार्टी के इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अहलिया शकील आमिर आयशा फातिमा ने खिताब किया और कहा पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी का साथ देने वाले अफराद बीआरएस के वफादार कहलाए जाएंगे। आयशा फातिमा ने अदा किया कि आइंदा रियासत तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बीआईएस पार्टी फिर से रियासत तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने कहा SIR मुहिम का इख्तिताम अमल में आने के बाद रियासत की सतह पर बीआईएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम भी शुरू होगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बाएं बाजू की जमातों की जानिब से गुज़िश्ता रोज सेपहर बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर CPI-ML मास लाइन प्रजापंथा के बोधन डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी बी मले, CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के रहनुमा P वर्धैया, CPI-M के रहनुमा जय शंकर गौ एवं CPIU के रहनुमा मोहसिन ने खिताब किया और कहा मरकजी वजीर तालीम का इस्तीफा जंतर मंतर दिल्ली में CJP की क़यादत में तलबा और नौजवानों की तारीखी जिद्दोजहद की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तालीमी निज़ाम में जवाबदेही तय करने की सिमत पहला कदम है। नौजवान तलबा पेपर लीक मामले में तलबा की बड़ी तादाद गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुजाहरा कर रहे थे। नीट पेपर लीक की वजह से मुल्क भर के हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर कांग्रेसी कायद हल्का असेंबली निर्मल के कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरियाव ने अपनी रिहाइशगाह पर निर्मल के स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत सैयद जेल अजहर से बातचीत करते हुए कहा। राव ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाजी तलबा से इज़हार यकजहती करने वाले खत आवर कायद राहुल गांधी के साथ पुलिस के रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा मरकजी वजीर तालीम प्रधान का इस्तीफा तलबा की कामयाबी है। श्री हरिराव ने इस नौजवान और तालिब इल्म को मुबारकबाद दी जो सड़कों पर निकले और जमहूरियत दस्तूर अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हो गए। इख्तिदार के नशे में वजीर आजम का बार बार ये कहना कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, आज मुल्क का नौजवान इस घमंड को चुकनाचूर कर दे साबित कर दिया कि नौजवान जब सड़क पर उतरता है तो हुक्मरान इसके गैज़ व गज़ब का सामना नहीं कर सकते और वो दिन दूर नहीं कि मरकजी हुकूमत को बेदखल करने अपोजिशन जमातें बिलखुसूस नौजवान मैदान में उतर पड़ेंगी। हनमकुंडा के रोहनी अस्पताल पहुंचने वाले बीआईएस पार्टी के KTR हरीश चौबी, विनोद कुमार टी राजैया और सीनियर कायदीन सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में शरीक करवाने के लिए एम्बुलेंस से मरीज सुदर्शन रेड्डी अस्पताल में मुंतकिल होते हुए LID मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने अपने कमेटी जिम्मेदारान मोहम्मद मुकरम अली, सैयद मुबीन अहमद पाशा, मुजीब अहमद ने सब इंस्पेक्टर राजू से खैर सगाली मुलाकात की, शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मधुल मंडल सेंटर में नीट सवालिया पर्चा लीक मामले में जामबाग तलबा को खराज अकीदत पेश करने और जख्मी तलबा से इजहार एकजहती के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर शम्मा रोशन की गई। इस मौके पर साबिक MLA ने मुतासिर खानदानों को मुनासिब मुआवजा देने, मुस्तकबिल में पर्चे लीक जैसे वाकयात की रोकथाम और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तकरीब में कांग्रेस के मुतअद्दिद मुकामी कायदी और कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक MPP अफरोज खान, शबान इजाजुद्दीन, सरपंच मधु, साबिक ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, जिले कांग्रेस सेक्रेटरी बशीर, जिले जनरल सेक्रेटरी पोतन्ना यादव, साबिक MPTC श्रीनिवास गौर मौजूद थे।
निजामाबाद जिले कांग्रेस सदर नागेश शेड्डी और कांग्रेस सदर बोबली रामकृष्णा की क़यादत में इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक शम्मा बरदार रैली निकाली गई। कायदीन ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तलबा और जमहूरियत की जीत करार देते हुए नीट पर चलित मामले में तलबा को इंसाफ कराने मोदी से मुतालबा किया। इस मौके पर NSUI की जद्दोजहद को सराहते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिमायत का भी जिक्र किया गया। साबिक नरसंपेट के MLA P. सुदर्शन रेड्डी को शदीद दिल का दौरा। BIS पार्टी के सीनियर कायद और नरसंपेट के साबिक MLA P. सुदर्शन रेड्डी को आज सुबह हनमकुंडा के मकान में शदीद दिल का दौरा पड़ा। तशवीशनाक हालत में अफराद खानदान ने उन्हें घर के करीब वाक़ रोहनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। हनमकुंडा की मारूफ सीनियर दिल की डॉक्टर ममता रेड्डी ने मुसलसल तकरीबन 8 मरतबा CPR किया और जब 9वें बार CPR में दोबारा दिल की हरकत शुरू हुई तो मज़ीद बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। के श्रीहरियाव हल्का असेंबली कांग्रेस निर्मल इंचार्ज SIR के ताल्लुक से सोन मंडल, मामला मंडल, सांगपुर मंडल, निर्मल रूरल के BLOs BLA के इजलास मुनक़िद करते वोटर लिस्ट में अपना नाम जो अहल है उनकी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम केडर को मुतहरिक करते हुए कहा कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने में कोई लापरवाही ना करे और अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा वक्त मुक़र्रर से पहले SIR की खाना पूरी कर ली जाए और इस काम को मुकम्मल किया जाए। पार्टी के BLA मुकम्मल ताउन करेंगे। साथ ही साथ के श्री हरियाव ने पार्टी सरपंचों, मंडल सूदों और कारकुनों को इस बात की हिदायत दी कि हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को हर मुस्तहिक फर्द तक पहुँचाने के लिए मौसर अंदाज में काम करे। खास तौर पर इंदिरा मकानात, पेंशन, राशन और दीगर फलाही स्कीमों के बारे में अवाम में आगाही पैदा की जाए ताकि हर अहल शख्स उससे फायदा उठा सके। इस इजलास में ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन भीम रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक वजीर और MLA विमल प्रशांत रेड्डी की साबिक MLC राजेश्वर राव से रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने करीमनगर के मामला पल्ली गाँव पहुंचकर साबिक MLC राजेश्वर राव की वालिदा के इंतकाल पर उससे मुलाकात के गहरे रंज गम का इजहार करते पुरसा दिया। इस मौके पर साबिक MLC लक्ष्मण राव, साबिक कॉर्पोरेशन चेयरमैन GV रामकृष्णा राव और BIS के दीगर कायदीन उनके हमारा मौजूद थे। हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की सुबह एक तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 कम उम्र लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त 17 साल महेश और 17 साल लक्ष्मी तेजा के तौर पर हुई है। दोनों एक दूसरे नौजवान के साथ स्कूटी पर क्रिकेट खेलने जा रहे थे कि इसी दौरान एक टिप्पर लॉरी ने उनकी गाड़ी को तेज रफ्तारी से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में तीसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही कोकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना में जारी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत घरों की अलाटमेंट के अमल के दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने शहरियों को साइबर धोखेधड़ी से होशियार रहने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि साइबर मुजरिम जाली APK फाइलों, फर्जी WhatsApp लिंक्स, फिशिंग वेबसाइट्स और जाली फोन कॉल्स के जरिए दरख्वास्त गुजारों की जाती और बैंक से मुतालिक मालूमात चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इतवार को जारी करदा अवामी इंतबाह में VC सज्जनार ने कहा कि 10,000 रुपए EMD यानी कि अर्नेस्ट मिनी डिपॉजिट की अदायगी का अमल शुरू होने के बाद धोखेबाज खुद को सरकारी ऑफिसर या स्कीम का नुमाइंदा जाहिर करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। उन्होंने वादे किया है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में किसी भी ब्रोकर या दलाल का कोई किरदार नहीं। घरों के अलाटमेंट का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ है और अगर किसी दरख्वास्त गुजार को मकान अलाट नहीं होता तो उसकी जमा करदा EMD रकम बराह रास्त उसी के असल बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। VC सज्जनार ने शहरियों को मशवरा दिया है कि किसी भी नामालूम शख्स के कहने पर APK फाइल डाउनलोड ना करें और ना ही एनीडेक्स या टीम व्यूवर जैसी स्क्रीन शेयरिंग एप्स इंस्टॉल करें, क्योंकि उनके जरिए साइबर मुजरिम मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। साबिक BRS सुकून असेंबली P. सुदर्शन रेड्डी को शदीद तकलीफ के बाद दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस उन्हें फौरी तौर पर हनमकुंडा के रोहिणी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रोहिणी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की हालत अब मुस्तहकम है और वो इलाज का मुस्बित जवाब दे रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी दिल की धड़कन बहाल हो गई है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल इंतजामिया ने पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया। डॉक्टरों ने वादे किया है कि उनकी मौत की खबर गलत है और वो जेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक P. सुदर्शन रेड्डी की सेहत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और उनकी हालत में बेहतरी आ रही है।
तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल में वाक़े चिरुआ घाटू पहाड़ी के दामन में हफ्ते की देर रात जबरदस्त आग लगने से श्री पार्वती जडला रामालिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के करीब 17 दुकानें और 15 ठेले जलकर खाकीसर हो गए। इस हादसे में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आग एक खिलौनों की दुकान से लगी और देखते ही देखते करीबी दुकानों तक फैल गई। इस दौरान 2 गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग मजीद भड़क उठी। आग की लपेट में ग्राम पंचायत का दफ्तर भी आ गया, जहाँ कई सरकारी दस्तावेजात जलकर तबाह हो गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वाकया आधी रात के वक्त पेश आया, इसलिए तमाम दुकानें बंद थी और कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। नीट पेपर लीक मामला और तलबा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए निर्मल में कैंडल रैली का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और निर्मल जिले कांग्रेस कमेटी की अपील पर पेपर लीक वाकया और तलबा की कुर्बानियों के तनाजुर में कल शाम एक बड़ी कैंडल रैली निकाली गई। ये रैली विवेकानंद चौक से शुरू होकर डॉक्टर अम्बेडकर चौक तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस रहनुमाओं, कारकुनों और तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असेंबली हल्के निर्मल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के श्री हरिराव ने खिताब करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से मुल्क भर के हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और तलबा की खुद कुर्बानियों की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने तलबा से इजहार एकजहती करने वाले कायद राहुल गांधी के साथ पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की जदोजहद और मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तहरीक की एक अहम कामयाबी है। इस रैली में साबिक वजीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी, निर्मल जिला मार्केट कमेटी चेयरमैन भीम रेड्डी, बल्दिया निर्मल के नायब सदर नशीन ए गणेश चक्रवर्ती, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन सैयद अर्जुमन अली, जिले कांग्रेस सेक्रेटरी जुनेद मेमन, मोहम्मद दीशान अली, सेक्रेटरी कांग्रेस अकलियती सेल निर्मल टाउन एम ए मतीन, इमरानुल्लाह, रुकन बल्दिया के अलावा कांग्रेस पार्टी के खवातीन भी शरीक थे। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ बाईपास रोड पर इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जोरदार टकराने के बाद कई बार उलट गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसे एक ही खानदान के 5 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा साने हटल गया। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान यादगिरी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। कोदाड़ बाईपास पर पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकराकर कई बार उलटती हुई सड़क किनारे जा रुकी। मुकामी अफराद ने बगैर वक्त दायर किए कार में फंसे तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया। उन्हें निकालने के चंद ही लम्हों बाद कार में सीएनजी गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाकीसर हो गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ हरास फैल गया। हादसे में एक शख्स मामूली जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर कोदाड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर 4 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। बाद पुलिस ने हादसे पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। यानी शाहिदीन का कहना है कि अगर मुकामी अफराद बर वक्त मदद न करते तो यह हादसा एक बड़ा अलमिया में तब्दील हो सकता था। उनकी बहादुरी और फौरी कार्रवाई ने 5 कीमती जानें बचा ली। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गोवा के पानाजी के आजाद मैदान में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान के हाथ में एक पोस्टर था, जिस पर लिखा था उमर खालिद, शर्जील इमाम और भीमा कोरेगांव के 16 अफराद को रिहा किया जाए। पुलिस के मुताबिक उस नौजवान का नाम दानिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर्चा लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की क़ियादत में होने वाले मुल्कगीर एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मौके पर नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने दानिश के हाथ में ये पोस्टर देखा तो उसे शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती दस्तावेज न होने पर उसे पूछगछ के लिए पानाजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस वाक़े के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और पोस्टर दिखाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए दानिश ने कहा कि वो उमर खालिद की रिहाई के मुतालबे की हिमायत करता है। एहतजाजी मकाम पर मौजूद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक दानिश को हिरासत में लिए जाने के बाद आजाद मैदान में मौजूद मुजाहिरीन उसकी हिमायत में पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब मार्च करने लगे और उसकी रिहाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने सदीन दलवी को भी हिरासत में ले लिया। सदीन दलवी पर इल्जाम है कि उन्होंने भी उमर खालिद की हिमायत की और मीडिया के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने बताया है कि दोनों अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह है कि उमर खालिद सन 2020 में शुमाल मशरिकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मुकदमे में इस वक्त जेल में बंद है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मुल्क में पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात लड़ने की कम अज कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी। नीट इम्तिहान के पर्चे लीक मामले के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के नेकलेस रोड पर शमा बरदार रैली निकाली गई। यह रैली तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक मुनक्किद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक की तरह हिंदुस्तान
پاکستان में भी नौजवानों को 21 साल की उम्र में रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली का इंतखाब लड़ने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वजीर आजम बनते हैं तो कानून साज इदारों के इंतखाबात लड़ने की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकरीबन 30% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए उन्हें भी कानून साज इदारों में नुमाइंदगी का भरपूर मौका मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला का ये दौरा कौमी दारुल हुकूमत का 74वां दौरा होगा। रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली रवाना होंगे। दोनों रहनुमा AICC इजलास में शिरकत के अलावा पार्टी के आला कायदीन से मुलाकातें भी कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी के तंजीमी उमूर, तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों और दीगर अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। रियासती कांग्रेस की तंजीम को मजीद मजबूत बनाने और पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बार बार दिल्ली दौरों पर सियासी हलकों में भी बहस जारी है। अपोजिशन जमातों उनके दौरों की तादाद पर सवालात उठाती रही है, जबकि कांग्रेस क़यादत का कहना है कि मरकज़ की क़यादत के साथ राबता और रियासत से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत के लिए ऐसे दौरे ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने क्योर के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरमा हाउसिंग टावर्स प्रोजेक्ट के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज किया है, ताकि शहरियों को दरख्वास्त के अमल और दीगर मामलात में आसानी फराहम की जा सके। इस हेल्पलाइन का रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन 04024603572 सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में खिदमत अंजाम देगा। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने दरख्वास्त के तरीक़ेकार को आसान बनाने की वजाहत करते हुए चंद अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दाखिल करते वक्त किसी भी इजाफी दस्तावेज़ात को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजार को कम अज कम 10 साल तक क्योर इलाके में मुकीम होना लाजमी है। खानदान की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक खानदान से सिर्फ एक दरख्वास्त कबूल की जाएगी। जिन अफराद का क्योर या आउटर रिंग रोड की हदूद में पहले से अपना मकान या ज़मीन मौजूद है, वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। अगर किसी दरख्वास्त गुजार को फ्लैट अलाट नहीं होता है तो 10,000 EMD की रकम UPI या नेट बैंकिंग के जरिए उसी बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि इंदिरमा हाउसिंग टावर्स में एक फ्लैट की कदर 40 लाख से 60 लाख रुपए तक है। ताहम हुकूमत 5 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। बाकी 6 लाख रुपए जिन्हें फ्लैट अलाट हुआ उन्हें अदा करना होगा। वजीर ने वादे किया है कि अगर अहल दरख्वास्त गुजारों की तादाद दस्तियाब फ्लैट से ज्यादा हो तो तमाम अलाटमेंट शफाफ तरीके से कुरानदाजी के जरिए किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।